Okay, friends, welcome to another class of SFC Gurukul. In today's class, we are going to discuss the taxability of income from stock market. In my earlier video class, I have discussed about the presumptive taxation, specifically in relation to Section 44 AD. Now, in this video, I will particularly concentrate on the how to tax the income from the share market. Okay, and specifically from investing activity, from trading activity, from derivative option trading activity, and from BTST, from swing trading, all those things. Okay, and there we will take the help of presumptive tax. But in this video, we are not going to discuss the presumptive tax against. Don't if you have any query regarding the presumptive taxation, please go and check my earlier video. You will get the link of this video in the description. And apart from that, my students will also get the my video classes regularly. They can check it from there. They also have the note with them. Now let's start with the today's topic: taxability of income from stock market. So first first thing to start with in today's class, I will start with again with a circular number 6 of 2016 issued by CBDT, Ministry of Finance, Department of Revenue, GOI, Government of India, regarding the taxability of surplus of sale of shares and securities, capital gain or business income, okay, in order to reduce the litigation. Actually, what happens many a times, there is a litigation among the SSC and the department in regards to the taxability of the income arising out of the sale of shares. For SSC, it may be capital gain. For department, they may try to tax it as business income, or on the contrary, the SSC may try to show it as a business income. The department may have a different view that it is of a capital gain. So there is a difference in opinion among the SSC and the department. And to resolve those issues, income tax department has come up with this circular in 2016. So the circular says there's a subsection 14 of the section 2 of the Income Tax Act 1961 defines the capital asset to include the property of any kind by the SSC, whether or not concerned connected with his business or profession, but does not include any stock in trade. So this point was subject to certain exceptions. So this point should be regarded in mind. This section I have already discussed in my capital gain classes. But here the point is to be considered here that everything can be treated as every property, any property held by the SSC can be treated as capital assets except the property held as a stock in trade. So the shares and the securities that we are talking about today is basically comes under the classification of capital assets. But if the SSC held this as a stock in trade, then that will definitely not come under the purview of this section 214. That will it will go beyond the purview of capital assets. Then it will become so the income from those assets, from those securities by selling, will definitely be treated as your business income. As regards to the shares and other securities, same can be held as either capital assets or as stock in trade, trading assets, or both. Determination of the characteristics of a particular investment in the share of other securities, whether the same is in the nature of capital assets or of stock in trade, is essentially the fact specific, and determination has led to a lot of uncertainty and litigation. So what does it actually means? It actually means that in case to case basis, in some cases the shares held by the SSC may be treated as stock in trade, then it will be treated as business income. The income generated from the sale of those securities will be treated as business income. But in some other cases, the department may take it as a capital assets, and the profit or loss arising from such sale of securities will be treated under the head capital gain.
So over the years, the code has laid down the different parameters to distinguish between the share held as investment from that of the stock in trade, and CBDT has also, through instruction 1827 of August 13, 1989 and circular 4 of 2007 dated 15 June 2007 summarize the said guideline principle. So let us see what are those things. So dispute, however, continues to exist. So CBDT, realizing the major part of the share and security transaction takes place in listed ones. So today we are discussing, we will limit our discussion in respect of listed securities. We are not discussing about the unlisted one. Okay, because the major part is the listing security. We do intraday trading, we do investment, we do derivatives, we do BTST, we do swing trading, all those things in the listed securities mainly. So today, although unlisted securities may have some tax implication and that are different in nature slightly, but that I am not going to discuss in today's class. I am basically today restricting my discussion in respect of the listed security only. Hope you understand this. Now coming to this, so with a view to reduce the litigation and uncertainty in the matter, a partial modification of the aforesaid circular further instruction the EO in holding whether the surplus generated from sale of listed shares or securities would be treated as capital gain or business income shall into take into account the following. So CBDT, by the help of this circular, has given certain parameters, have given certain guidelines how to determine that whether the income is from business side or from capital gain side. ओके तो क्या हुआ एक्चुअली जब आप बिजनेस में जब आप शेयर्स और सिक्योरिटीज को सेल करते हो परचेस करते हो इन शेयर मार्केट्स तो क्या होता है वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका लॉस या प्रॉफिट दोनों होता है और वो डिफरेंट टाइप्स का होता है ट्रांजैक्शन जैसे हम लोग जानते हैं एक होता है इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी जिसमें डिलीवरी लिया जाता है एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग जो सेम डे में स्क्वायर ऑफ करके अपना पोजीशन को नेट ऑफ किया जाता है जिससे प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होता है एक होता है ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग यानी डेरिवेटिव मार्केट्स में एक होता है स्विंग ट्रेडिंग एक होता है बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो और वाइस वर्सा सो इन ऑल दोस केसेस what will be the tax treatment of the profit and loss that we generate from those transactions. तो वो सब ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये डिपेंड करेगा एक्चुअली दो चीज के ऊपर कभी ये एक्चुअली दो कैटेगरी में आता है एक तो एक्चुअली शेयर्स और सिक्योरिटीज जो होता है वो किस में आता है इन जनरली वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में आता है यानी कैपिटल गेन के अंदर में आता है पर अगर कोई शेयर और सिक्योरिटी एज ए स्टॉक इन ट्रेड एसएससी ने होल्ड करके रखा हुआ है तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर में नहीं आएगा यानी वो कैपिटल एसेट के हिसाब से नहीं पकड़ा जाएगा उसको तब कैपिटल एसेट नहीं पकड़ा जाएगा तो उसका जो सेल से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो बिजनेस इनकम के हिसाब से ट्रीट होगा और अगर ये वैसे नहीं हुआ अगर ये स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो इसको कैपिटल एसेट पकड़ सकते हैं और अगर कैपिटल एसेट पकड़ते हो तो उस केस में कैपिटल गेन के हिसाब से उसका प्रॉफिट या लॉस ट्रीट होगा और ये शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड ठीक है यहाँ तक अब कैसे पकड़ेंगे कि ये बिजनेस इनकम है कि कैपिटल गेन का इनकम है तो इसके लिए कुछ पैरामीटर इनकम टैक्स अथॉरिटी में ये सर्कुलर 6 of 2016 में बोला गया है फर्स्ट where the SEC itself is irrespective of the period of holding the listed shares or security opts to treat them as stock in trade the income arising from transfer of such shares and security to be treated as business income अगर एसएससी खुद बोल दे कि चाहे वो कितने दिन के भी पकड़ रखे 2 साल के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए पकड़ रखे फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं ये मेरा बिजनेस है ये इन्वेस्टिंग ही मेरा बिजनेस है तो उसका वो पीरियड ऑफ होल्डिंग को इग्नोर कर दिया जाएगा उस सिक्योरिटी का सेल या परचेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बिजनेस इनकम के हिसाब से ट्रीट किया जाए ओके नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से ट्रीट किया जाए इन रेस्पेक्ट ऑफ ए लिस्टेड सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर
a period more than for 12 months immediately preceding the date of its transfer, if the SSC desires to treat the income arising from transfer thereof as capital gain, the same shall not be put to dispute by the AO. However, this stand once taken by the SSC in a particular assessment year shall remain applicable in the subsequent assessment year also, and taxpayers shall not be allowed to adopt the different or contrary stand in this regard in the subsequent years. तो what does it means? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे वहां पे बोल दिया गया था स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे वैसे बोल दिया गया है अगर कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है जिसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स है, यानी 12 महीने से ज्यादा आपने होल्ड करके रखा है उस सिक्योरिटी को, तो एसएससी अगर चाहे तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस है उसको एज ए कैपिटल गेन ट्रीट करवा सकता है. दिस ऑप्शन द एसएससी हैज, just like in your house property case, when you have more than one house property, the SSC has the option to choose which one to declare as a self-occupied. Similarly, here also SSC has the option, income tax authority has given you the option to choose that how to treat your income from the sale of security, whether as capital gain or as business income. तो जहां पे 12 महीने के ज्यादा आपने कोई शेयर को पकड़ के रखा हुआ है, उसका सेल के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको कैसे आप दिखाएंगे आपके रिटर्न में, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है डिपार्टमेंट ने. आपको ऑप्शन दिया है, आप बोलिए इसको आप कैपिटल गेन पकड़ेंगे कि बिजनेस इनकम पकड़ेंगे. तो आप जो पकड़ेंगे वही एओ भी पकड़ेगा, वो उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकेगा. बट देयर इज वन कंडीशन, वहां पे एक कंडीशन दिया गया है कि वंस यू टेक द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन चाहे आप ले ले, चाहे आप कैपिटल गेन ले ले, चाहे बिजनेस इनकम ले ले, जो भी एक बार आपने एक्सरसाइज कर दिया, आपको वही ऑप्शन में स्टिक करके रहना होगा ईयर आफ्टर ईयर. ओके, इन द सब्सिक्वेंट ईयर यू विल हैव टू स्टिक टू द ऑप्शन एंड द सेम प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल टू द एसएससी. सब्सिक्वेंट ईयर में यू कैनॉट चेंज योर स्टैंड. ठीक है, यानी क्या हुआ, एक बार आपने कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम कुछ भी पकड़ लिया तो आगे के सारे सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आपका वो इनकम शेयर से लेके जो भी इनकम होगा वो उसी हेड में चार्ज होगा. बाद में जाके आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. बी केयरफुल. ओके, तो यू कैनॉट चेंज इट. तो जहां पे आपका इनकम, आप कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम कुछ भी पकड़ लिए हो और वो इनकम आपका ट्रीट हो गया है 12 महीने से ज्यादा था, पर बाद में सब्सिक्वेंट ईयर में आप वो चेंज नहीं कर सकते. अगर प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन पकड़े हो तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपको कैपिटल गेन पकड़ना है. अगर प्रीवियस ईयर में बिजनेस इनकम पकड़े हो तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपको बिजनेस इनकम भी पकड़ना है. चेंज नहीं होगा कि इस ईयर कैपिटल गेन, उस ईयर बिजनेस इनकम, फिर नेक्स्ट ईयर कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम एज पर माय डिजायर. ऐसा हर टाइम आपको एक बार ही आपको मिलेगा, फर्स्ट टाइम. समझ गए? इन ऑल अदर केसेस, और जहां पे ये 12 महीना नहीं हुआ वहां पे क्या होगा सर? जहां पे 12 महीना नहीं हुआ, इन दैट केस, यानी फॉर ऑल शॉर्ट टर्म केसेस, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज वेदर द सेम is the nature of capital gain or business income shall constitute to be decided in the view of aforesaid circular issued by the CBDT. तो वहां उस केस में जहाँ पे लेस देन 12 मंथ्स का होल्डिंग है, उस केस में सीबीडीटी का जो डिफरेंट सर्कुलर्स है, जैसे हमने बोला है ये 4 सर्कुलर नंबर 4 या 1827 का सर्कुलर, ये सब के हिसाब से वो पकड़ा जाएगा. सर इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी आएंगे आगे वीडियो में. It is however clarified that the above shall not apply in respect of such appreciation or of such transactions in shares and securities where the guideline of the transaction itself is questionable, such as bogus claim of LTCG or STCL or any स्टैम्प ट्रांजैक्शन. जहां पे ट्रांजैक्शन का ही कोई रिलायबिलिटी नहीं है, उस केस में तो आपको सोचना ही नहीं है, ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा. जहां पे आप फॉल्स ये कोई क्लेम बना रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है फॉल्स क्लेम के लिए, ये तो जेन्युइन केस के लिए बात हो रहा है. कोई भी सर्कुलर फॉल्स क्लेम के लिए अप्लाई नहीं होता है.
It is reiterated that the above principles have been formulated with the sole objective of reducing the litigation and maintaining the consistency approach on the issue of the treatment of income derived from the transfer of shares and securities, ताकि आगे चल के डिपार्टमेंट और एसएस के बीच में लिटिगेशन ना हो, उसको घटाने के लिए और एक कंसिस्टेंसी रहे, एसएस जो भी स्टैंड ले वो इन फ्यूचर भी वो उसमें रहे, तो उसके चलते ये सर्कुलर बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो हमको समझ में आया। 12 मंथ से ऊपर होगा तो मेरे पास ऑप्शन है, 12 मंथ के नीचे होगा तो एज पर सर्कुलर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। पर कहीं पे भी अगर मैंने इसका स्टॉक इन ट्रेड मान लिया तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, यानी बिजनेस इनकम हो जाएगा। अब जो बोले थे सर्कुलर 427 में 2017 में क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। सर्कुलर 4 ऑफ 2007 डेटेड 15/6/2007, ये वाला सर्कुलर, ये जो यहाँ पे जो बोले थे। ठीक है, ये सर्कुलर अभी हम लोग देखेंगे। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एसेट एंड ट्रेडिंग एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एसेट्स 214 में बोला गया है, ये हम लोग जानते हैं। सेक्शन 229B में बोल दिया गया है, long term capital asset deals with under section 229A and section 229B, and capital asset deals with section 214. ठीक है, short term capital gain, capital assets and gains are dealt in section 242A and section 242B, ये सब तो हमको पता है। अब ट्रेडिंग एसेट्स कहाँ पे डील किया गया है, अंडर सेक्शन 28 में डील किया गया है। अब सीबीडीटी क्या बोल दिया है ना, सीबीडीटी through the instruction number 827 of August 31st 1989 has brought the notice to the AO that there is a distinction between the share held as investment, that is like capital asset, and share held as stock in trade, like trade asset. In the light of the number of judicial decisions pronounced after the issuance of the above instruction, it is proposed to update the above instruction for the information of the SSC as well as for the guidance of the AO. ठीक है, इन केस ऑफ ए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल कैलकाटा वर्सेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 82 ITR 586, Supreme Court observed that whether a particular holding of share is by way of investment or form the part of the stock in trade is a matter which is within the knowledge of the assessee who holds the share, and it should in normal circumstances be in a position to produce evidence from its record as to whether it has maintained any distinction between those shares which are its stock in trade and those which are held by way of investment. तो इसमें क्या बोल दिया गया है ना, इस केस में CIT कैलकाटा वर्सेस एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का जो केस हुआ था, सॉरी, उस केस में क्या बोल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कोई भी एसेट जो एसएससी हेल्ड कर रहा है एज सिक्योरिटी, वो एज ए इन्वेस्टमेंट है कि एज ए स्टॉक इन ट्रेड है, ये किसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, ये एसएससी के पास ज्यादा नॉलेज होगा। और एसएससी को एविडेंस दिखाना होगा, ही हैज टू प्रोड्यूस द एविडेंस कि वो कुछ ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि जिससे पता चले कि कौन सा एसेट वो एज ए इन्वेस्टमेंट पकड़ रहा है और कौन सा एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड पकड़ रहा है। अगर वो ऐसा एक डिस्टिंग्विश्ड सेपरेट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वो बना के रख दे अपने पास, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दिखा देगा कि दिस सेट ऑफ सिक्योरिटीज विल बी हेल्ड बाय मी एज माय स्टॉक इन ट्रेड, so any gain or loss from the sale or transaction of this security should be treated as business income, and this category of security I am holding as my investment, so it should be treated as a capital asset, and any profit, loss or gain from such type of sale or from the transaction of such type of security should be treated as capital gain or capital loss under the head capital gain. Okay, तो ये पूरा एसएससी के ऊपर दे दिया गया कि उसका एक सेट ऑफ बुक्स रहना चाहिए जहां पे वो ये रिकॉर्ड रहना चाहिए, बुक्स नहीं बोलेंगे, रिकॉर्ड्स रहना चाहिए जहां पे वो इसको डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा वाला बिजनेस के लिए है, कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, in case of the commissioner CIT Bombay versus H. Hawk Larson, the Supreme Court observed that the High Court is, in our opinion, made a mistake in observing whether the transaction of sale or purchase of the shares
were trading transactions or whether these were in nature of investment was a question of law. This was mixed question of law and fact. The principle laid down by the Supreme Court in the above two cases afford adequate guidance to the AO. The authority of advance ruling 288 of ITS 641, referring the decision of Supreme Court in several cases, has called out the following principle: where a company purchases and sells the shares, it must show that they were held as stock in trade, and that the existence of power to purchase and sale of share in the memorandum of association is not decisive of the nature of transaction. The substantial nature of transaction and the manner of maintaining books of accounts and magnitude of the purchase and sale, and the ratio between the purchase and sale and the holding would furnish the good guideline to determine the nature of transaction. Ordinarily, the purchase and sale of shares with a motive of earning profit would result in the transactions being in the nature of trade and adventure in the nature of trade, but where the objective of the dealing with the above three principles, A are observed the fidelity group as under. We shall revert to the aforementioned principle. First principle requires to ascertain whether the purchase of shares by a FII exercised by the power of memorandum of the AO association, memorandum of association or trustees, was as stock in trade, as mere existence in the power of purchase or sale will not by itself be decisive of the nature of transaction. We have to verify as to how the shares were valued and held in the books of account, and whether they were valued in the stock in trade at the end of the year for the purpose of arriving at the business income, or held as an investment in capital assets. The second principle furnishes a guide for the determining the nature of transaction, verifying whether there are a substantial transaction, their magnitude, the maintenance of books of accounts, finding the ratio between purchase and sales. And it will not be out of place to mention the regulation 18 of the SEBI regulation enjoins upon every FII to keep and maintain the books of account containing the true and fair accounts relating to the remittance of initial corpus of buying and selling and realizing the capital gain on the investment, and accounts of remittance to the India for investment in India and realizing the capital gain on investment from such remittance. Third principle suggests that the ordinary purchase and sale of shares with a motive of realizing profit would lead to inference of the trade and adventuring nature of trade, where the objective of investment in share of the company is to derive the income by way of dividend. The transaction of purchase and sale would yield the capital gain and not as business profit. मतलब क्या बोला सर? मतलब इन जीस्ट ये 9 नंबर इसमें बोल दिया है, 3 गो प्रिंसिपल है. फर्स्ट प्रिंसिपल है जो भी बिजनेस है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, तो उसका चार्टर मतलब जिसका मेन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस होता है, जैसे कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए उसका एग्रीमेंट हो गया. ये सारे जगह पे कहीं पे भी ये लिखना नहीं चाहिए कि उसका सेल या परचेज ऑफ शेयर उसका मेन बिजनेस मोटिव है या मेन लाइन ऑफ बिजनेस. अगर ऐसा लिखा होगा तो उसका ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज वो बिजनेस एक्टिविटी हिसाब से ही पकड़ा जाएगा. सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? सेकेंड प्रिंसिपल बोल रहा है आप देखो ट्रांजैक्शन का फ्रीक्वेंसी को देखो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखो, रेशियो बिटवीन परचेज एंड सेल को देखो, एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को देखो. ये सब चीज को देखो, देख के समझो कि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सेलिंग और परचेज क्या प्रॉफिट जनरेट के लिए हुआ है या ये इन्वेस्टिंग के लिए हुआ. अगर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सेल या परचेज इन सिक्योरिटीज प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हुआ है तो वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा. ठीक है. और अगर ये इन्वेस्टमेंट पर्पस में हुआ है
बुक्स में कैसे दिखा रहा है, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि एज ए ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, उसका इनकम को कहाँ ट्रीट कर रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है बिजनेस में। तो ये सब देख के तुम डिटरमाइन करो कि वो बिजनेस इनकम है कि कैपिटल गेन के अंदर में जाएगा। और थर्ड प्रिंसिपल बोल रहा है कि जहां पे कोई भी बिजनेस का मोटिव ये है कि परचेज और सेल के थ्रू प्रॉफिट रियलाइज करे, उस केस में उस बिजनेस में उस सिक्योरिटी का परचेज ऑफ सेल को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। और जहां पे वो सिक्योरिटी परचेज या सेल का मोटिव ये है कि वहां पे डिविडेंड अर्न किया जाए, वहां पे उस सिक्योरिटी को कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से नहीं आए। तो ये तीनों मोटा मोटा चीज है, समझ में आ गया। So the CBDT wishes to emphasize it is possible for the taxpayer to have two portfolio, one for investment comprising the security which are treated as capital asset, and trading portfolio comprising of the stock in trade which are to be treated as trading asset. Where the SSC has two portfolios, the SSC may have the income under both the heads, capital gain as business income. You are advised to advise that the above principles should guide determining whether the given case the shares are held by the SSC as an investment, therefore no capital gain will arise as stock in trade, and therefore or as stock in trade, therefore the business profit will arise, or जहाँ पे as an investment होगा therefore capital gain will arise. Okay, the AO are further advised that no single principle would be decisive and the total effect of the all the principles should be considered to determine whether in the given case share held by the SSC as investment or as stock. तो पूरा देख के आपको देखना होगा दिस इंस्ट्रक्शन से सप्लीमेंट द अर्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ 1827-1989, यानी 1827-1989 का अभी और कोई वैल्यू नहीं रहा, इस सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2007 ने उसको सुपरसेट कर दिया, इसलिए 1827 को और हम लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, समझ गए। चलो अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, मोटा मोटा क्या होता है। सॉरी, तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने अभी तक समझा, दिखा रहे हैं कि हम लोगों का क्या होता है इनकम। तो स्टॉक मार्केट से क्या क्या इनकम होता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम होता है, एक बाई सेल का इन्वेस्टिंग के थ्रू से इनकम होता है जिसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं, और एक इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम होता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग का जो इनकम होता है वो आपको बोला गया है ट्रीट एज नॉर्मल बिजनेस इनकम, ठीक है, उसको बिजनेस इनकम के हिसाब से ट्रीट कीजिए एज ए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। ओके, अब कैपिटल गेन के हिसाब से जो होगा सर उसको क्या करेंगे, कैपिटल गेन के हिसाब से जो होगा उसको आप, यानी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहा है शेयर का, उसको आप कैपिटल गेन के हेड में डालिए उसका इनकम को, और उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। पर यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म करने के टाइम में आप याद रखिएगा 12 मंथ से ज्यादा होगा तो आपके पास फिर भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको कैपिटल गेन, चाहे तो इसको बिजनेस इनकम में पकड़ सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा डिपार्टमेंट का कि आप कैसे आपका रिकॉर्ड्स रखते हैं कि आप इन्वेस्टिंग वाला शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को डिफरेंशिएट करते हैं कैसे अपने इंटरडे वाले पोर्टफोलियो से, और उसके हिसाब से आपको पकड़ा जाएगा कि ये एज ए इन्वेस्टमेंट हुआ है कि एज ए बिजनेस इनकम हुआ है। ओके, अब सर इसका टैक्स रिटर्न क्या होगा, आएंगे आगे। उसके बाद आता है जो भी हमने लिया है बिजनेस, उसका सर क्या होगा, उसका क्या हमको तो सर उसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करें। पहले इंटरेस्ट इनकम जो भी हमको मिलेगा वो डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्स, और उसका टैक्स होगा एज पर IT स्लैब रेट, ठीक है। ओके, और सर जो डिविडेंड इनकम हुआ है, जो डिविडेंड इनकम हुआ है उसको दो कैटेगरी भाग करेंगे। अगर फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी से हमको डिविडेंड मिला है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है मेरे लिए। अगर डोमेस्टिक कंपनी से मिला है तो वो एग्जेम्प्टेड है
अप टू 1 लाख रुपया तक अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, पर ये 1 लाख रुपया तक आपका डिविडेंड जो एग्जेम्पशन है वो कौन सा ईयर तक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक है। बट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब करंट ईयर से क्या हो जाएगा, होल अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज टैक्स। क्लियर? ओके सर, यहां तक तो क्लियर आ गया। चलो उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरली 15% के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली 10% एक्सीडिंग 1 लाख के हिसाब से आपका टैक्स होता है। हालांकि यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलेगा। हियर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट। You can enjoy indexation benefit here. ओके आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट का फायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन केस के लिए। ओके ओके यहाँ तक समझ में आया? ओके और डिटेल में समझेंगे। अब टैक्स कैसे भरेंगे? अगर सिर्फ आपका कैपिटल एसेट है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस में है, तो वो कैपिटल गेन में होगा, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, इंटरडे नहीं है, तो आईटीआर 2 आएगा। अगर इंटरडे है, वो बिजनेस इनकम कैटेगरी में आता है, तो आईटीआर 3 होगा। ठीक है, और अदर सोर्स डिविडेंड इनकम, ये किसी के भी साथ हर जगह पे, हर आईटीआर पे आपको अदर सोर्स डालने का जगह मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपका दोनों है, तो क्या होगा, कैपिटल गेन और अदर सोर्स हर जगह मिल जाता है। तो अगर आपका बिजनेस इनकम है, उसके साथ कैपिटल गेन भी है, डिविडेंड इनकम है, तो आपको आईटीआर 3 भरना है जनरली। पर ये जो आईटीआर वाला फॉर्म है, ये ईयर टू ईयर चेंज करता रहता है डिपार्टमेंट। तो जिस साल आप भर रहे हैं उस साल ये बेटर है, यू शुड कंसल्ट सम प्रोफेशनल। ठीक है, वो डिपार्टमेंट का सर्कुलर भी आता है, उसको भी देख लेने से आपको गाइडिंग अप्रोच मिल जाएगा। देन टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट। तो टर्नओवर के लिए यहाँ पे छोटा छोटा बोला गया है। टर्नओवर के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, टर्नओवर मींस एब्सोल्यूट प्रॉफिट। एब्सोल्यूट प्रॉफिट मींस क्या, ना सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस। मतलब नेगेटिव डिफरेंस मतलब क्या हुआ, जहां पे लॉस भी हुआ है इंटरडे में, उसको भी पॉजिटिव मान के जोड़ दिया जाएगा, और टोटल को हम लोग एज ए टर्नओवर पकड़ेंगे। क्या बोले, और डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे, यहीं पे तो कैच है। अच्छा, अब इससे पहले थोड़ा जो टैक्स का और डिटेल में देख लेते हैं। अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12 मंथ्स है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। रेट है 15% एंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अप टू 8 years, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ against short term or capital long term capital gain in the same financial year, or if it is carried forward, then it will be adjusted against capital gain head on in the subsequent ways. Long term capital gain अगर more than 12 months है, तो 112A के अंदर आता है, 10% LCG होगा, exceeding 1 lakh rupees under section up to 1 lakh under section 1038 में ये exempted है। ठीक है, यहाँ पे भी LTCL जो भी आपका लॉस होगा कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG। ये केवल LTCG के अगेंस्ट में ही आपका LTCL एडजस्ट होगा, पर STCL जो है वो LTCG या STCG दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट होता है। ओके, और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो उस केस में आपका टैक्स का जो भी लायबिलिटी है वो थोड़ा घट जाता है। क्लियर? देन कम टू द इंटरडे ट्रेडिंग व्हेन नो डिलीवरी टेक्स प्लेस, सेम डे में होता है। इट शुड बी ट्रीटेड एज स्पेक्युलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड शुड बी टैक्सेबल एट ए एप्लीकेबल टैक्स slab and can be carried forward for coming 4 years only. The speculative loss can only be set off against the speculative income. वो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। पर यहाँ पे एक बेनिफिट है, जैसे ही आप इसको बिजनेस इनकम पकड़ लेते हैं, तो आपके पास एक एस्केप रूट आ जाता है सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, एंड थ्रू दैट वे यू कैन रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी सब्सटेंशियली। कैसे कर सकते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय अर्लियर क्लास। वो अभी मैं और डिस्कस नहीं करूंगा, अगर नहीं समझे हो तो प्रीवियस क्लास फिर से देख लो।
वहां से समझ आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है, प्लीज कॉल मी और ज्वाइन विद मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो 44 एडी में टर्नओवर लिमिट क्या है? 44 एबी के अंदर में सर अगर बिजनेस करते हैं तो वहां पे टैक्स ऑडिट का एक झमेला होता है। हाँ होता है, अंडर सेक्शन 44 एबी। तो सर क्या हमको टैक्स ऑडिट करवाना है? तो उस केस में 44 एडी में जो बोला गया है कि अगर ये बिफोर 2019-20 के लिए टर्नओवर लिमिट है 1 करोड़ रुपीस, अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको 44 एडी जा सकते हैं, वहां पे कोई टैक्स ऑडिट का जरूरत नहीं है। और अगर 2019-20 में कितना है सर, वो टर्नओवर लिमिट बढ़ के 5 करोड़ हो गया है, तो वहां पे 5 करोड़ तक है तो आपको ऑडिट करने का जरूरत नहीं, आप 44 एडी ले सकते हैं। और उसके बाद 1920 से अभी तक सर क्या है, अभी बन गया है 10 करोड़। तो उसमें 10 करोड़ तक अगर आपका इनकम है, टर्नओवर है, तो वो टर्नओवर में आपको कोई टैक्स ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 44 एबी। आप सिंपली 44 एडी के थ्रू प्रिजम्पटिव टैक्स रूट पकड़ के निकल सकते हैं। क्लियर? अब एसटीसीजी ऑन डेब्ट डिवेंचर और बॉन्ड अदर देन जीरो कूपन, जीरो कूपन के लिए अलग स्टेटमेंट होता है, वो अभी नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर वो क्या होगा, एसटीसीजी अगर लेस देन 36 मंथ, यहाँ पे मान लीजिए 12 मंथ का पीरियड है, यहाँ पे 36 मंथ है, अगर लेस देन 36 मंथ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, एप्लीकेबल स्लैब रेट में होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल। अगर ज्यादा है, मोर देन 36 मंथ है, तो वो एलटीसीजी हो जाएगा, 20% रेट में रहेगा, 8 साल तक जाएगा। इंडेक्सेशन फॉर बॉन्ड और डिवेंचर आर नॉट अलाउड, ये याद रखें। ओके, इंडेक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा एलटीसीजी होने के बाद भी। अच्छा, टैक्स रेट फॉर डीलिंग इन कैश मार्केट इफ सिक्योरिटी हेल्ड एज स्टॉक, इफ सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक by any retail investor, then any income arising from sale of such securities will be taxable as business income. ओके, तो वो एज बिजनेस इनकम हो जाएगा। यहाँ पे मिस हो गया, हम लिख दे रहे हैं एज, जस्ट अ मिनट, हम लिख दे रहे हैं एज बिजनेस इनकम ही इसको पकड़ा जाएगा। एक मिनट, ये क्लियर नहीं आ रहा है, इसको पूछ के लिख दे रहे हैं। बिजनेस इनकम ट्रीट होगा। अब क्लियर है? ओके, चलो। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के लिए क्या होगा? डिविडेंड अगर टैक्सेबल है तो सर उस केस में क्या होगा? टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड फॉर इंडिविजुअल, अगर कैपिटल एसेट है, एज ए इन्वेस्टमेंट पकड़े हुए हैं, उसका जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से, एज पर स्लैब रेट में। वो लास्ट ईयर तक था 1 लाख तक छूट था, अभी सारा छूट उठ गया है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन कंपनी हो। पहले डोमेस्टिक के लिए 1 लाख तक छूट मिलता था, क्योंकि तब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, अभी वो उड़ गया है। तो अभी आपके हाथ में पूरा डिविडेंड टैक्सेबल हो गया, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो। ठीक है? और अगर वो कैपिटल एसेट ना हो के बिजनेस एसेट हो गया, मतलब बिजनेस एज ए ट्रेड एसेट पकड़ा गया है, स्टॉक ट्रेड पकड़ के रखा हुआ है, तो उसका डिविडेंड क्या होगा? एज ए बिजनेस इनकम स्टेट होगा। ओके, अब डिविडेंड आर सब्जेक्ट टू TDS of 7.5% under section 194 if such amount exceeds 5,000 rupees in a financial year। अगर 5,000 से ज्यादा आपको किसी कंपनी डिविडेंड देती है तो आपके ऊपर वो TDS काट लेगा एट द रेट ऑफ 7.5% में अंडर सेक्शन 194 में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है? पर ये तभी आपको मिलेगा अगर आपका एज ए हेल्ड आप इसको रखते हैं। अब आते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को सरप्राइजिंगली इनकम टैक्स ने नॉन स्पेकुलेटिव नेचर में डाल दिया। ठीक है? तो ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के हिसाब से आएगा। इसको आप कैपिटल गेन भी पकड़ सकते हैं, बिजनेस इनकम भी पकड़ सकते हैं। जैसे इसको अब इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव,
और कमोडिटी डेरिवेटिव। पर जनरली डेरिवेटिव को बिजनेस एक्टिविटी में ही पकड़ा जाता है, तो इसको नॉन स्पेकुलेटिव एड में जाना जाता है, और जो कि ये बिजनेस इनकम पकड़ा जाता है एप्लीकेबल एज पर स्लैब रेट ही हो जाता है। क्लियर? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द शेयर्स एज ए कैपिटल एसेट्स और स्टॉक इन ट्रेड, क्या क्या फैक्टर देखेगा? ट्रीटमेंट shown in the books of accounts, whether as a shown as a investment or as a stock in trade. Existence of power to purchase or sell in the memorandum of article or association is not decisive factor that it is a stock in trade। कोई जो बोले आपका चार्टर में कहीं पे भी ये स्टॉक इन ट्रेड या यही मेन बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस है, ये नहीं लिखना चाहिए, वरना ये बिजनेस इनकम हो जाएगा। क्वांटम ऑफ परचेज ऑन सेल कितना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, एंड इंटेंशन ऑफ द एसएससी क्या है, वेदर टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड। अगर अर्न प्रॉफिट है तो ये बिजनेस इनकम हो जाएगा, अगर टू अर्न लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड है तो ये कैपिटल एसेट माना जाए। ठीक है, अब ये है आपका जो भी इंडिविजुअल का रेट है वो दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये डिस्कस नहीं करते, हालांकि आप लोग सब जानते हैं, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। चलिए, ये तो बोल दिए हैं। अब आते हैं थोड़ा एग्जाम्पल में और देखते हैं कैसे सेल या परचेस को किया जाता है, टर्नओवर को कैसे किया जाता है। मान लीजिए निफ्टी इज एट 8000, यू बाय फॉर 100 निफ्टी। ओके, तो बाय साइड में आपका वैल्यू कितना हुआ? 8 था। निफ्टी गोज टू 8100 एंड इन स्क्वायर ऑफ द 100 निफ्टी, द सेल साइड वैल्यू कितना होगा? 8100 into 100, 8,10,000। तो बाय में आपने 8 लाख किया, सेल में 8,10,000 किया, तो टोटल टर्नओवर बाय एंड सेल पकड़ के 8 लाख प्लस 8,10,000 16,10,000 हो जाएगा। तो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट टर्नओवर, जिसके ऊपर बाय के टाइम में आपका डिविडेंड लगा 8 लाख के ऊपर, सॉरी ब्रोकर ने ब्रोकरेज लिया, और सेल के टाइम में 8,10,000 के ऊपर ब्रोकर ने ब्रोकरेज लिया। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये वैल्यू दिखाया जाता है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट सेल द आईटी डिपार्टमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन, दे आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टर्नओवर। सो बिजनेस टर्नओवर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट सेल। So read below on how the turnover is calculated. The method of calculating turnover is debatable issue, and what makes it a gray area is that there is no guideline as such from the IT department, only except those two circulars that I have read out at the very outset of this class. इस क्लास के शुरुआत में जो दो सर्कुलर हमने बोला है उसको छोड़ के आईटी डिपार्टमेंट के हिसाब से और कोई गाइडलाइन नहीं है। पर यहाँ पे सी इंस्टीट्यूट एक पाइवटल रोल प्ले करता है। उन लोगों का एक गाइडेंस नोट है सेक्शन 44 AB के अंदर में, उसमें कुछ लिखा हुआ है। वन आर्टिकल विद ग्रेट हेल्प थ्रू द गाइडेंस नोट टू द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB issued by the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, governing body of CAS. The article on the page 23 of सेक्शन 5.12 एक्चुअली ये चेंज हो गया है, नया में ये 5.14 हो गया है, ऑफ दिस गाइडेंस नोट हैज गिवन बिलो हाउ द ट्रांजैक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड। तो 44 AB का जो गाइडेंस नोट है सी इंस्टीट्यूट का, उसका गाइडेंस नोट कुछ इस तरीके का है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन बोल दिया गया है कि जहां पे speculative transaction means in which the contract for purchase or sale of any commodity including stock or shares is periodically or ultimately settled otherwise by than the actual delivery or transfer of the commodity of the scrip. Thus the speculative transaction, the contract of sale or purchase which is entered is not completed by giving or receiving the delivery so as to result in the sale or as per the value of the contract note. The contract is settled otherwise and squared up by paying out the differences which may be positive or negative. So in case of an SSC undertake the speculative transaction, there can be both positive and negative differences arising from the settlement of various contracts during the year. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा डिटेल बोल दिया गया है कि according to the aggregate of both positive and negative differences is to be considered as turnover for the purpose of such transaction for the purpose of determining the liability of tax audit under section 44 AB। यानी अगर आप कोई स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन करते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब कौन? ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, कौन सा वाला? इंट्राडे ट्रेडिंग। और
ऑप्शन फ्यूचर का क्या होगा सर? ऑप्शन फ्यूचर का तो आपका स्पेकुलेटिव में आता ही नहीं है, वो तो पहले ही बोल दिया है कि वो नॉन स्पेकुलेटिव हेड में डाल दिया है इनकम टैक्स में, तो वो तो इस केस में नहीं आया। वो जैसे ही नॉन स्पेकुलेटिव केस में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो नॉन स्पेकुलेटिव हो गया, मतलब उसको आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में पकड़ सकते हो, उसका टर्नओवर अलग से हो, ठीक है? ये स्पेकुलेटिव में आ गया। तो स्पेकुलेटिव मतलब इंटरडे सेल या परचेस हो, ठीक है? उसका टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस दोनों को जोड़ के आपका टर्नओवर कैलकुलेट होगा, ठीक है? आगे एग्जांपल देके समझेंगे इसको। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन। Such transaction is completed without the delivery of share and security. These are also spread out by the contract notes are issued for the full value of the asset purchased and sold, but the entries in the books of accounts are made only for the differences, and the transaction may be squared up any time before the striking date, on or before the striking date. The buyer of the option pays premium. The turnover in such types of transaction is to be treated as follows. उसमें क्या होता है? द टोटल फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस शैल बी टेकन एज टर्नओवर। स्पेक्युलेटिव की तरह यहाँ पे भी फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंसेस को जोड़ लिया जाता है। इन एडिशन जो भी प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं, इफ यू सेल एनी ऑप्शन, सो दैट हैज आल्सो टू बी एडेड, दैट हैज आल्सो टू बी इंक्लूडेड, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। तो अगर कोई ऑप्शन अगर सेल कर रहा है, बाय नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको, यानी आप राइटिंग है, चाहे वो कॉल का हो चाहे पुट का हो, इफ यू आर द राइटर और द सेलर ऑफ द ऑप्शन, then any premium you received on the sale of the option, that will also be added to calculate your total turnover limit. In respect of any reverse trade entered, अगर उसको ठीक करने के लिए, कभी कभी होता है आप कॉल ऑप्शन लिए हैं, बाय किए हैं या सेल किए हैं, अब उसको सही करने के लिए आपने एक कॉल ऑप्शन फिर से बाय कर दिया, तो रिवर्स ट्रेड में एंटर कर दिए, तो डिफरेंस देयर शुड आल्सो भी फॉर्म द पार्ट ऑफ योर टर्नओवर। तो जो भी आपका क्या बोलेंगे, टर्नओवर का जो भी दो टर्नओवर जो आप दिए, एक कॉल का बाय किए, एक कॉल का सेल किए, या एक पुट का बाय किए, एक पुट का सेल किए, तो दोनों का ही टोटल सेल को आपको टर्नओवर के हिसाब से पकड़ लिया जाएगा, ठीक है? और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में टोटल वैल्यू ऑफ द सेल्स इज टू बी कंसीडर्ड एज ट्रांजैक्शन। जितना आप सेल किए हैं वैल्यू को, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय देयर करंट मार्केट प्राइस, जिसमें आप सेल किए, वो जो वैल्यू आएगा वही आपका सेल और टर्नओवर पकड़ा जाएगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं विथ एग्जांपल्स, ठीक है? सॉरी, for delivery based transaction, for all delivery based transactions where you buy stocks and hold them for one day and sell them, the total value of the sales to be considered as turnover, यानी डिलीवरी बेस्ड में। तो उसमें जो हम बोले कि आपने मान लीजिए 100 रिलायंस सेल्स करी थे 800 में, बाद में उसको 820 में सेल कर दिया नेक्स्ट डे में, तो आपका सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा? टर्नओवर 820 into 100, 82,000 हो जाएगा एज योर टर्नओवर। But remember that the above calculation of turnover of the only applicable if you declare the equity delivery as your business income. If you declare it as your capital gain, then there is no need to calculate your what? Turnover. क्योंकि टर्नओवर बिजनेस इनकम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, 44 भी बिजनेस इनकम के लिए डील करता है, ना कि आपका कैपिटल गेन। तो उस केस में ये जो 44 वाला सेक्शन है तो बिजनेस इनकम प्रोविजंस के अंदर में आता है। तो अगर ये बिजनेस इनकम में आप आते हैं तभी ये टर्नओवर वाला लिमिट आपके ऊपर लागू होगा। अगर आप इसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मोर देन 12 मंथ वाला केस में आपके पास ऑप्शन है, यू कैन डिक्लेयर इट एज योर कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट, तो उस केस में आपका कैपिटल गेन होगा, तो उसमें आपको टर्नओवर देखने का जरूरत नहीं है, वो आपका टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। सॉरी, नाउ आते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, मतलब इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में। For all speculative transactions, aggregate of or the absolute sum of both the positive and negative differences from the trade is to be considered as turnover. So if you buy 100 shares of 800 in the morning and sell them for 820 afternoon, the total profit you make or the positive difference is 2000, 20 rupees into 100. So this 2000 will be treated as your turnover, right? अब नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में क्या आता है? नॉन स्पेकुलेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शन। वहां पे क्या होगा? वहां पे भी टोटल फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंस को टर्नओवर को लिया जाएगा, प्रीमियम जो रिसीव हुआ है सेल में उसको भी ऐड किया जाएगा, और उसके साथ क्या किया जाएगा? यानी रिवर्स ट्रेड में अगर घुसे तो उसको भी आपको जोड़ा जाएगा। मान लीजिए इफ यू बाय
one lot 25 units or one lot of Nifty at 8,000 and sell them at 7,900. So your negative difference or loss is 25 into 100, 2,500. This 2,500 is your turnover from trade. But in option, if you buy 100 lots of Nifty at 8,200, call at 20 and sell them at 30. Firstly, the favorable differences of 100 कैसे 100 हुआ ना, आपने 8,200 का 20 में लिया था, 30 में बेचा है, तो आप 10 रुपया पर कॉल में आपको मिला है 100 निफ्टी का, तो आपको फुल लॉट में टोटल 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है. इट इज योर टर्नओवर, बट द प्रीमियम रिसीव ऑन द सेल इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन, विच इज अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको कितना प्रीमियम मिला है, 30 करके मिला है ना 100 के ऊपर, तो 30 इंटू 100 3,000. तो आपका टोटल हो गया प्रॉफिट या लॉस प्लस आपका टोटल सेल ऑन टर्नओवर जो प्रीमियम मिला है 3,000. तो कुल मिला के 4,000 हो गया आपका ऑप्शन में आपका टर्नओवर. ओके, अब थोड़ा नेक्स्ट जगह पे भी जाते हैं. अब इसको हम दो हिसाब से देख सकते हैं. स्क्रिप्ट वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे एवरेज प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके वो तीनों को लगा के कर सकते हैं, या फिर ट्रेड वाइज. ठीक है, हालांकि फ्यूचर के लिए थोड़ा अलग है, ऑप्शन के लिए थोड़ा अलग है. फ्यूचर का ऑप्शन के लिए देखते हैं और फ्यूचर के लिए भी देखते हैं. तो देखिए, ये है फ्यूचर के लिए. मान लीजिए आप 100 निफ्टी खरीदे जनवरी फ्यूचर, 100 जनवरी फ्यूचर निफ्टी खरीदे 8,000 में और उसको 8,100 में सोल्ड कर दिए, और उसके बाद फिर से 100 निफ्टी खरीदे जनवरी फ्यूचर का 8,100 में और उसको सोल्ड किया 8,050 में ऑन 10 जनवरी. तो आपका टर्नओवर क्या होगा? तो फर्स्ट केस में आप दोनों केस में पहले अगर स्क्रिप्ट वाइज जाते हैं तो आपको एवरेज परचेस प्राइस और सेल प्राइस. तो परचेस, पहला वाला परचेस कितने में किए हैं आप? 8,000 में किए हैं. सेकेंड वाला परचेस किए हैं 8,100 में. तो कुल मिला के दोनों का परचेस कितना हुआ? 8,050 हो गया आपका 200 निफ्टी का एवरेज प्राइस. और सेल के लिए एवरेज सेल प्राइस क्या है? पहले का सेल किया 8,100 में, दूसरे का सेल किए 8,050 में. तो कुल मिला के आपका हो गया 8,075 हो गया आपका एवरेज सेल प्राइस. ओके, 200 निफ्टी का. तो इसमें आपने एवरेज बाइंग प्राइस है 8050, एवरेज सेलिंग प्राइस है 8075. तो आपका इस हिसाब से प्रॉफिट होता है 25 फॉर 200 निफ्टी. सो दिस 5,000 विल बी योर प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम योर, विल बी ट्रीटेड एज योर टर्नओवर फॉर निफ्टी. पर ये कुछ हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर इसको ट्रेड वाइज आप पकड़ेंगे तो थोड़ा दूसरा है और वही करेक्ट होगा. देखिए, ट्रेड वाइज अगर पकड़ते हैं तो 8,000 का क्या होता है, यहाँ पे नेट ऑफ होके 5,000 आ गया ना, पर ये एक्चुअली 15,000 होगा. कैसे होगा? देखिए, 8,000 का आप बाय किए हैं 100 पहले और उसको सेल किए हैं 100 करके 8,100 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ कितना? 10,000 रुपया फर्स्ट ट्रेड. सेकेंड ट्रेड में क्या हुआ? आपने 8,100 का खरीदे 8,050 में बेचे, तो आपका लॉस हुआ 5,000. सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेट ऑफ करेंगे तो 5,000 ही आएगा. हाँ, स्ट्रिक्ट वाइज में सेटअप हो जा रहा है, पर इनकम टैक्स ने बोला है सेटअप मत करो, समेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू को लेने के लिए बोला है. मतलब इसको जो लॉस हुआ है 5,000 को, इसको माइनस मत समझो, इसको भी पॉजिटिव पकड़ के जोड़ दो, यानी 10,000 प्लस 5,000 15,000 हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट सम ऑफ टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस, और वही तुम्हारा टर्नओवर होगा. तो ये करेक्ट है. ठीक है, तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्लीज चेक योर टर्नओवर लिमिट ट्रेड वाइज, नॉट स्क्रिप्ट वाइज, क्योंकि वहां पे वो सेट ऑफ हो जाने के चांसेस है ये वाला केस में. हालांकि ऑप्शन वाला केस में दोनों साइड से ही सेम आएगा. देख लेते हैं. देखो, 100 निफ्टी दिसंबर 8,000 फुट खरीदे हैं 100 का और उसको सोल्ड किए 50 में ऑन 3 दिसंबर को. अनदर 100 निफ्टी दिसंबर 8,000 का फुट का खरीदे 50 में और उसको सोल्ड किया 30 पे. अब आपको टर्नओवर निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट वाइज जाओगे तो आपको क्या करना होगा? एवरेज निकालना होगा. तो एवरेज निकालने के लिए सर पहले परचेस प्राइस क्या था? 100. सेकंड का परचेस प्राइस क्या था? 50. तो दोनों का एवरेज परचेस प्राइस कितना हुआ? 200 फुट्स का 100 प्लस 100,
तो 75, ठीक है, 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 75, ओके। तो सेल के लिए 200 पुट्स का क्या हुआ सर, पहले सेल किया 50 में, फिर सेल किया 30 में, 50 30 80 40, ठीक है। तो सेल प्राइस हुआ 40, ये बाई प्राइस हुआ, एवरेज बाई प्राइस हुआ 75। तो एवरेज मेरा नेगेटिव डिफरेंस, लॉस नहीं बोलेंगे, नेगेटिव डिफरेंस है 35 या लॉस। तो पर पुट में, तो 200 पुट के लिए 7000 मेरा लॉस या नेगेटिव डिफरेंस है, तो इसको तो लेंगे ही। उसके साथ ये जो पुट सेल करके 200 पुट सेल किए 40 करके, तो कितना मुझको टोटल प्रीमियम मिला, 40 करके प्रीमियम मिला, एवरेज प्रीमियम। तो 200 इंटू 40 8000 का मुझको प्रीमियम मिला है। तो 8000 प्लस दिस 7000 15000 विल बी माय टोटल टर्नओवर फ्रॉम दिस ऑप्शन ट्रांजैक्शन एज पर स्क्रिप्ट वाइज। अब ट्रेड वाइज देखते हैं। अब अगर ट्रेड वाइज में जाते हैं तो पहले हमने क्या किया था, 100 में खरीदा था, उसको 50 में सेल किया था, तो मेरा लॉस हो गया था 50 करके 100 डिप्ट किया, 5000 का लॉस हुआ था, नेगेटिव डिफरेंस। सेल वैल्यू कितना था, सेल वैल्यू था मेरा 50 करके सेल किया था 100 का, यानी 5000। तो टोटल लॉस प्लस सेल ए प्लस बी मिला के सी, टोटल टर्नओवर हो गया 10,000 फर्स्ट ट्रेड का। सेकेंड ट्रेड का क्या हुआ, हमने खरीदा 50 में, सेल किया 30 में, लॉस हुआ कितना, लॉस हुआ 20 करके 100 का 2000। तो ये भी मेरा डिफरेंट नेगेटिव डिफरेंस है, तो ये भी मेरा टर्नओवर पकड़ा जाएगा। और सेल वैल्यू कितना है, 30 इंटू 100 यानी 3000। तो ये भी मेरा प्रीमियम रिसीव हुआ है फ्रॉम सेल। तो 3000 प्लस 2000 5000 हो गया सेकेंड ट्रेड से, ये हो गया ए। तो फर्स्ट ट्रेड का टोटल टर्नओवर है सी 10,000, सेकेंड ट्रेड का टोटल टर्नओवर है 5,000 एफ। तो टोटल टर्नओवर फ्रॉम दिस ट्रेड विल बिकम 15,000। देखो ट्रेड वाइज भी 15,000 आ गया, यहाँ पे भी 15,000 आ गया, अब सेम आ गया, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट आवर turnover for option case, for nifty case, for future case, for intraday case and for delivery। अब सर आता है, अगर आप मैं बीटीएसटी करता हूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, हिसाब के अनुसार बीटीएसटी या स्विंग ट्रेडिंग दोनों ही डिलीवरी कैटेगरी में आता है। तो डिलीवरी कैटेगरी नॉन स्पेकुलेटिव में आता है, ठीक है। अब ये नॉन स्पेकुलेटिव वाला केस अगर है तो आपके पास को देखना होगा कि आपका ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो जनरली आप जो बोल रहे हैं बीटीएसटी और स्विंग ट्रेड ये दोनों तो शॉर्ट टर्म ही होगा। तो इस केस में आप बिजनेस इनकम पकड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, या फिर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है बीटीएसटी और स्विंग ट्रेड का, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ही पकड़ा जाएगा। तो उस केस में आप 40 एडी का हेल्प ले सकते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, और टर्नओवर के थ्रू निकल सकते हैं। और अगर नहीं निकल पा रहा है, आपका टर्नओवर लिमिट उससे ज्यादा हो गया, 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो आपका रेगुलर बिजनेस के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा और आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। और अगर ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन ना होकर प्रिजम्पटिव में गया तो आपका तो वो 6% होगा, जो कि 100% यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। तो आपका 6% ऑफ द टोटल टर्नओवर आएगा। टोटल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईच केस में हमने बोल दिया, इंटरडे केस में, डिलीवरी केस में, निफ्टी यानी फ्यूचर केस में, और ऑप्शन वाला केस में। तो उस हिसाब से हम लोग टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे, और वो टर्नओवर अगर 10 करोड़ से कम आया तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से जो भी टर्नओवर आएगा उसका 6% पकड़ के प्रॉफिट डिक्लेयर कर देंगे, और उसके हिसाब से अगर वो आपका टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना है, नहीं है तो नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सीधा सीधा बात। अब आते हैं आपका हिसाब के अनुसार। दूसरा केस है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम जिसका मोर देन 12 मंथ है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बिजनेस इनकम भी पकड़ सकते हैं, तब वो टर्नओवर के अंदर आएगा। और अब उसको बिजनेस इनकम ना पकड़ के कैपिटल गेन भी पकड़ सकते हैं, मतलब कैपिटल इनकम भी, कैपिटल एसेट भी ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें कैपिटल गेन के अंदर आएगा, एलटीसीजी में आ जाएगा। पर एलटीसीजी 1 लाख तक आपका छूट है, उसके बाद आपको देना पड़ेगा एज 20%। और पर वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। तो पर एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वाला एसेट्स को शेयर सिक्योरिटी को कैपिटल एसेट पकड़ लेते हैं तो वो आपको
वो स्टैंड पे आपको स्टिक करके रहना है, उससे आपको छूट नहीं मिलेगा। ओनली शॉर्ट टर्म के लिए ही आप तब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला रूल लागू कर सकते हैं। हालांकि ये सही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए प्रिजम्पटिव करते हैं और लॉन्ग टर्म को अगर आप कैपिटल एसेट ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे आपको ही फायदा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर प्रिजम्पटिव होता है तो आपका टैक्स रेट बहुत घट जाएगा, और लॉन्ग टर्म वाला जो कि आप कैपिटल एसेट पकड़े तो टर्नओवर लिमिट के अंदर में भी आने का चांसेस नहीं है, जाके आपका टर्नओवर लिमिट एक्सिट कर जाए तो उस केस में यू विल बी, देयर इज a huge scope that you will be very much within the turnover limit of 44AD। 44AD का टर्नओवर लिमिट के अंदर में आप रहेंगे, तो उस केस में आपको 44AB के अंदर में टैक्स ऑडिट में जाने का जरूरत नहीं होगा। तो उस केस में सिंपली आपका 6% ऑफ योर टोटल टर्नओवर you can use as and declare as your profit, and on that you can pay the tax. That is a minimum amount that you will pay by opting the short term assets as your business income अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। और लॉन्ग टर्म वाला में अगर आप कैपिटल गेन पकड़ते हैं तो वहां पे भी आपको सुविधा है, क्या है, पहला तो 1 लाख रुपया तक ऐसे ही आपको छूट मिल जाएगा। 1 लाख तक आपका कैपिटल गेन है तो नहीं देना है, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको कैपिटल गेन देना है। वो वहां पे भी वो कैपिटल गेन देने के टाइम में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा और कैपिटल गेन का बाकी सारा जो डिडक्शन है वो भी मिल जाएगा, तो वो भी छूट है। तो यही मेरे हिसाब से टैक्स लायबिलिटी या टैक्स मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है कि शॉर्ट टर्म वाले को आप बिजनेस पकड़िए और उस हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, लॉन्ग टर्म वाले को कैपिटल मिलता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। You can ask me anytime 24/7. Okay, thank you.